जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्. Very good evening, viewers from across India and those who are going to be a part and parcel of this bandwagon. I welcome all of you for this spectacular discussion today here in Sureshji's farmhouse. My dear viewers, we have got some very distinguished citizens of India, in fact from Patna, inhabitants of Patna, those who are just sitting here, and of course it's indeed a very panoramic side because sun is about to set, and you all know this is Vivekanand Jha, an author, academician and a public intellectual. My dear viewers, this is in fact a very momentous occasion in as much as I am making a very important announcement that we are, in fact, I am very much embarking on a very important journey to write, in one of the finest spiritual biographies, and of course about the man who is nothing but, a beacon light for the humanity today. And most importantly, the concerned saint, a beacon of light, with whom I am going to have some sort of very important conversation pertaining to various important issues, bedeviling our republic. So of course it is going to be a very important interaction in Hindi, because our honorable saint, despite being fluent and proficient in multiple languages, I think that for the citizens of India, for our fellow patriots, it would be better if the interaction happens in Hindi. Therefore, it is going to be a very important discussion today, important conversation with our august, guest, our own, very revered Swamiji, Mahamandaleshwar, from Juna Akhara, revered Guru, His Holiness Swami Umakantanand Ji. At the very age, I have already described him, that he basically is an amalgam of both Swami Vivekananda as well as Swami Dayananda. Whereas it comes to the matter of wisdom, he has a striking resemblance with that of Swami Vivekananda. When it comes to a wonderful physique, a very stoutly built physique, he is inevitably, unequivocally, he has a striking resemblance with that of Swami Dayananda Ji. So you can well understand that what it means. It is going to be a very intellectual and engrossing conversation with our very esteemed and distinguished guest, His Holiness Mahamandaleshwar, our revered Swami, Swami Umakantanand Ji. स्वामी जी, आज का जो ये चर्चा है, आपने विशेष रूप से हमें समय दिया है. इतना सुंदर जो है वातावरण है, और हम आज देश दुनिया का चर्चा करेंगे. खास करके आज हिंदुस्तान का जो समस्या है, जिस तरह से सनातन धर्म का यदि हम उत्थान नहीं हो पा रहा, यदि पता, या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि हम लोग थोड़ा पतन की तरफ जा रहे हैं. तो हम जो सर्वप्रथम आपसे ये प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपको देश और विश्व के लोग जानते हैं, आप पूरा धर्म संसद में 1999 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किए, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए, तो थोड़ा कृपया इस पर प्रकाश डालें. क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज पूरा विश्व में सभी, जैसे कि यहूदी जो कि इजराइल के लोग हैं, ज्यूज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनका भी अपना एक देश है जो कि इजराइल का देश नाम से हम जानते हैं. मगर हिंदू, जो सनातन जो धर्म से हम लोग हैं, हिंदू जो कि सबसे प्राचीन यहाँ की एक सभ्यता है, आज हिंदू अपना कोई नेशन, हिंदू का नेशनलेस हिंदू है. क्योंकि भारतवर्ष जो कि हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए, वो आज हम सर्वधर्म में बढ़ चुका है. तो कहीं ना कहीं हिंदू क्या अपने आप को विक्षुब्ध ना समझे, क्योंकि उसका अपना कोई देश नहीं है. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है स्वामी जी? देखिए जज जी, पहला प्रश्न था आपका कि आज हिंदू डाउन हो रहा है, पतित हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आ रहा है. हिंदू शब्द बाद में आया है, और ये मूल रूप से है सनातन. और सनातन का मतलब होता है जो न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है. सृष्टि प्रारंभ से जो लॉ ऑफ नेचर आए, जीवन जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को सुव्यवस्थित रखने के लिए और जन समूह को एक साथ मिलकर उत्थान की ओर बढ़ने के लिए जो
चीज़ें ईश्वरीय रूप से प्राप्त हुई उन्हीं को हम सनातन कहते हैं। तो सनातन तो कभी खत्म हो नहीं सकता। हम जिसे धर्म मान लेते हैं वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म के 3 पार्ट हैं। पहला नीति नियम जिसे हम मोरालिटी कहते हैं, ये भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। अलग अलग सेक्ट, अलग अलग पंथ, अलग अलग भौगोलिक परिवेश में पैदा हुए तो उनके मानने के तरीके अलग अलग हो गए, लेकिन वो धर्म नहीं, जीवन जीने की पद्धति है। आज सारी दुनिया में हंगामा ये मचाया जाता है कि हिंदुइज्म इज नॉट रिलीजन, दिस इज वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ है, लेकिन लाइफ को लोग बड़े भौतिक मेटेरियलिस्टिक स्तर पर समझते हैं कि खाना पीना, जीना, बिल्डिंग बनाना, गाड़ी, बाल बच्चे, इतना ही। लाइफ तो पूरा लाइफ है, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ भी आता है। जीवन मरणशील है। यहाँ जब हम आते हैं तो लाइफ क्या यहाँ आने के बाद शुरू होती है? भौतिकवादियों के लिए जब तक ये शरीर जिंदा है तब तो लाइफ मानते हैं, लेकिन हिंदू अर्थात सनातनी कभी भी इतने को ही लाइफ नहीं मानते। वो एवरलास्टिंग है लाइफ। यहाँ आए, यहाँ से शरीर छोड़ के गए, वो भी लाइफ है। अगर लाइफ नहीं होता तो लाइफ आफ्टर लाइफ, बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी कि इस लाइफ के जो फिजिकल लाइफ दिख रहा है इससे भी अलग कोई लाइफ है। तो हिंदू तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो हिंदू कभी खत्म नहीं हो सकता। पूरे विश्व में जहाँ भी प्राकृतिक नीति नियम माना जाता है वो हिंदुइज्म में तो है। कोई ऐसा नहीं हिंदू धर्म में कि इस किताब को मान लेंगे, बाकी तथाकथित सांप्रदायिक किताबों पर निर्मित है और यहाँ जीवन पर निर्मित है। इसमें किताबें आती हैं और जाती हैं, लेकिन वो ज्ञान बना रहता है। और वहाँ किताब हटा दीजिए तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। अब आपका प्रश्न ये था कि सभी धर्मों के लिए अपना अपना राष्ट्र है, हिंदू के लिए राष्ट्र क्यों नहीं? ये हिंदू राष्ट्र है, वास्तव में हिंदू राष्ट्र है। आज कुछ आंदोलन चलते हैं, गाहे बगाहे कहीं से शब्द आ जाते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तख्ती पे लिख देंगे हिंदू राष्ट्र, तभी ये हिंदू राष्ट्र होगा। जहाँ हिंदू अधिक संख्या में रहते हैं और न केवल रहते हैं, जिसकी जड़ें जिस देश में है, जिसकी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत जिस देश में है, वो मौलिक रूप से हिंदू राष्ट्र ही है। भले ही कोई कन्वर्टेड आके रहने लगा या कन्वर्ट हो गया तो ये मुस्लिम राष्ट्र तो कभी भी नहीं हो जाएगा, ये क्रिश्चियन राष्ट्र कभी नहीं हो जाएगा। हम सेकुलर इसको भले ही मान लें, लेकिन है तो ये हिंदू ही राष्ट्र। और सेकुलरिज्म का मतलब ये हिंदुत्व में विश्वास रखना, जहाँ सर्वधर्म समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु की लोग कहते हैं कि हम बात करते हैं, शब्द बड़ा हल्का रहता है, हम जीते हैं। कहते हैं ना कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। नहीं, हम बात करने वाले लोग नहीं, हम उसमें जीने वाले। हमारे लिए पशु पक्षी भी प्राणों से प्यारे हैं। तो भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग यहाँ जीते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपनी पूजा पद्धति, अपनी मान्यता माने, ये राष्ट्र हिंदू है। क्योंकि इस भूमि में जो संस्कार है उसको कोई बदल नहीं सकता। भौतिक रूप से, संवैधानिक रूप से भले ही लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, लिखा रहे कि ये हिंदू राष्ट्र है, वो भी समय आएगा और वो भी होगा। परिस्थितियाँ भले ही विपरीत लगती हो, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संवैधानिक रूप से भी इसकी घोषणा समय आने पे अवश्य होगी। ये हम भविष्य की बात करते हैं। Thanks a lot, my dear viewers. We have seen Swamiji explicating on the very important and prominent issue, conspicuous issue of India already being a Hindu Rashtra. And I recall a very important observation of Sarsang Chalak of Rashtriya Sangh, Sri Mohan Bhagwat, where Mr. Mohan Bhagwat had very categorically and candidly articulated the fact that so long as even one Hindu remains in India, it should be regarded as Hindu Rashtra. And our revered His Holiness has very candidly, he had explicated on this issue without any ambiguity, less of any exaggeration.
In fact, I would like to hear, as our Revered Swamiji has said, and of course, he had broached the topic of reincarnation. So I would like to say, since he has broached the topic of reincarnation, so I would like to quote Bhagavad Gita's Lord Krishna's his holy mouth, Bansasi jirnani yatha bihaya navnani grenati naroparani tatha sarirani bihaya jirna nayanani sangyati navani devi. So nice of you, revered Guruji, revered Swamiji. You already threw an adequate, आपने बहुत ही अच्छा से पूरा बहुत ही बढ़िया से इसको स्पष्टीकरण किया कि हिंदुस्तान भारत वर्ष हमेशा ही हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और बशर्ते जहाँ तक कि इसको संविधान में घोषित करना है वो भी आज न कल हो जाएगा। स्वामी जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये बात तो आपने बहुत अच्छा से स्पष्टीकरण किया कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, कोई दो बात नहीं है, और सभी कहीं ना कहीं हिंदू से रिलेटेड है। पर मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा कि क्या धर्म संसद जो अभी हरिद्वार में हुआ था उसमें कई सारे जो हिंदू धर्म के मतलब जो जिसको गुरु करके मानते हैं, उन्होंने इस तरह से जिस तरह से कमेंट किया कि नहीं, अब तलवार लेकर के हम लोग जो हैं दूसरे जात मतलब हिंदुओं का सर्व बने बोलबाला हो, दूसरा किसी को रहने का अधिकार नहीं है, इस तरह की जो कई सब स्टेटमेंट्स आए, तो इसमें एक आप नहीं सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म का जो इतना बड़ा जो विश्व रूप जो श्री कृष्ण ने दिखाया भगवद गीता में, और जिसे सनातन से हम लोग मानते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे धर्म गुरुओं ने इस पर एक कुठाराघात किया है, इस पर आपकी क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, कुठाराघात तो नहीं कहेंगे, उनका अपना स्तर है, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी विचारधारा, उनकी दृष्टि में दूसरे संप्रदाय यहाँ न रहे, केवल हिंदू रहे तभी हिंदू राष्ट्र है, और उनका अपना दर्द भी, उनको आघात लगा है, उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनको सताया गया है, तो उनकी अपनी पीड़ा है। और हम तो सबके लिए यही कहेंगे कि आंदोलन करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजतंत्र में कि आप तलवार से लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पे शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने उठाया, और भी लोगों को उठाना पड़ा, बंदा बैरागी को उठाना पड़ा, हमारे नागा बाबा बहुत संघर्ष में रहे, बहुत लोग इसमें बलिदान उनका हुआ साधुओं का। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, ये प्रजातंत्र है। आज आपकी शक्ति तलवार नहीं, वोट है। साधु बोल दें और जनता जातियों में बटी रहे, अलग अलग कुनबों में बटी रहे, बड़ी बड़ी बातें कर ले, और जब इलेक्शन आए तो अपने जाति के पीछे पड़ जाए। वो किस पार्टी से, किस विचारधारा से वो खड़ा है, इस पे भी ध्यान न दे, तो हमारे साधु लोगों के चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आप शस्त्र का शिक्षण देंगे, बहुत अच्छी बात है, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का भी शिक्षण दिया जाना चाहिए, और समय आने पे शस्त्र उठना भी चाहिए। अगर अनीति अत्याचार इतना बढ़ जाए, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। आज की परिस्थिति में भगवान हर व्यक्ति के अंदर है, और उनके पौरुष को जगाना ही आज का अवतार होगा। जो कल की अवतार है वो प्रज्ञा अवतार है। लड़ाई आज केवल हथियार से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ने का है, विवेक से लड़ने का है। तो सब लोगों तक सनातन के ज्ञान को पहुंचाने की जरूरत है कि सनातन कितना व्यापक है। हिंदू मतलब एक लिमिटेड सेक्ट, जैसे दूसरे मुस्लिम क्रिश्चियन है वैसा ही मान लिया जाता है। इसकी व्यापकता, इसकी आंतरिक शक्ति, ये हर हिंदू को या हिंदू अनुयायियों को समझने की ज़रूरत है। मुसीबत के लिए आत्मरक्षा जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है, विवेक जागृत हो, प्रजातंत्र है, आपका हथियार वोट है। आप इसमें सत्ता अपनी लाइए तो आप हिंदू राष्ट्र हैं। अगर सत्ता स्लिप हो गई तो आप दूसरों के गुलाम हो जाए। जब राष्ट्र ही, राजा ही दूसरा हो गया तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहे। आप चिल्लाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके फेमस हुआ जा सकता है, कुछ सार्थक कार्य संसार में नहीं हो सकता। स्वामी जी, जैसे आप कह रहे थे, ये जो पुनर्जन्म वाली बात है, खास करके भगवद गीता ने भी इस बात को कोरोबोरेट किया है। मगर एक बात है जो सदा मुझे खलता है, सदा मुझे एक विस्मृति मेरे अंदर पैदा करता है, वो ये है कि जब भारत, हमारा जो देश है, हजारों साल गुलामी का जंजीरों में रहा, और हमारे जो बड़े बड़े थिंकर्स हुए, स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंदो, वीर सावरकर, जब इन्होंने देश की दुर्दशा के बारे में सोचा,
तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पुनर्अवतार वाली या ये जो यदा यदा धर्मस्य जो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अवतरित होऊंगा बार बार और अधर्म को नाश करूंगा, कहीं ना कहीं हिंदुओं को हम लोगों को इससे कमजोरी पैदा कर दिया, क्योंकि हम लोग कोई व्यक्ति आएगा और हमको उद्धार करेगा, इसी बात सोच के अंतर हम हजारों साल गुलामी में रहे, हम अपने अंदर वो ताकत नहीं पैदा कर पाए। पहले तो ये समझना चाहिए हजारों साल की गुलामी की वास्तविक गुलामी रही है। आधा भारत दक्षिण का कभी गुलाम नहीं हुआ। मुगलों का जो हम जिक्र करते हैं 12वीं सदी के बाद मोहम्मद गोरी आया, पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष हुआ, हम अपनी क्षमाशीलता के कारण उसको एंट्री करने दिए, 17 बार हराने के बाद भी उसको छूट दी। उसके पश्चात भी मुगलों का राज्य दिल्ली के आसपास ही रहा, लेकिन आज़ादी के बाद जो शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा व्यवस्था बनाने वाले रहे, ये सब इस्लामिक मानसिकता के रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसी तरह के रहे। इसलिए पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया गया इस देश के गौरव को कमज़ोर किया जाए, इस्लामीकरण को बहुत बड़ा दिखाया जाए। जहाँ कबीले में रहने वाले लोग चोर डाकू यहाँ के धन संपत्ति को लूटने आए और यहीं बसने लगे और फिर कन्वर्जन करने लगे, लूटपाट करने लगे, हत्याएँ करने लगे। पूरा अगर आप इतिहास देखेंगे ठीक से तो दिल्ली के आसपास ही मुगलों का राज रहा। सारी लड़ाइयाँ पानीपत, दिल्ली, सोनीपत इधर ही रही, अजमेर तक पहुँचे। कभी भी पूरे भारत को गुलाम किसी ने नहीं किया। जो गलत पढ़ाया गया है, गलत सिखाया गया है, और बड़े बड़े विद्वान इसी का उदाहरण देते हैं कि हम बरसों सदियों गुलाम रहे। कहाँ रहे? आज भी दक्षिण भारत के सारे मंदिर सुरक्षित हैं। जो टूट फूट हुई उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भी बहुत ऐसे इलाके थे, क्षेत्रफल थे जिसमें वो कब्जा नहीं कर पाए। बुंदेलखंड कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, कोशिश होती रही। छत्रसाल ने उनको भगाया और मार भी दिया। शिवाजी ने महाराष्ट्र का भी कब्जा नहीं करने दिया, समझौते होते रहे। 10 किला वो भी जीत किए, फिर 1000 किला ये जीते। लड़ाई होती रही, संघर्ष चलता रहा, गुलाम नहीं हुआ। महरौली से लेकर दिल्ली तक, आज वो दिल्ली के अंदर ही है, आखिरी फिर इधर कुछ बाद में, और सब एक मुगल नहीं थे, उसमें लोधी थे, उसमें दूसरे शासक थे, उनका आपस में भी संघर्ष चलता रहा। तो सदियों के बाद बहुत तरह की चीज़ें आई, और हमारा ये विश्वास कि ईश्वर आएंगे, तो हर हिंदू ये विश्वास नहीं करता कि ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में आएंगे। व्यक्ति के रूप में भी आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो जनशक्ति ही काम करती है। जब राम आते हैं तो आप ध्यान से भगवान राम के व्यक्तित्व को अगर देखेंगे तो वो चमत्कार कर देते। सुदर्शन चक्र से रावण का गला काट देते, उसके नाभि का अमृत सुखा देते, सीता मैया को दिव्य दृष्टि से देख के ढूंढ लेते, राज्य करते सत्ता पर। लेकिन जब ईश्वरीय तत्व भी आता है तो जन समूह को लेकर प्रेरणा देता है कि आपको जीना कैसे। आप पूरे कैरेक्टर, पूरी ज़िंदगी भगवान राम का देखेंगे तो वनवासियों के साथ, और जहाँ भी गए उनका संगठन तैयार किया। जब ताड़का वध किया, जब मारीच और सुबाहु का वध किया, रामचरितमानस में छोटा सा वर्णन है कि विश्वामित्र ऋषि ले गए और वहाँ बिन फरमान राम तेहि मारा, सतजो जनगा सागर पारा, यज्ञ की रक्षा की, आगे जनकपुर चले गए। अलग अलग रामायण में देखेंगे, कंबन रामायण में और भी रामायणों में, तो वर्णन आएगा कि वहाँ गए, लोकल लोगों को संगठित किया, जो जिस काबिल थे, जो लोहे का काम करते थे उनको हथियार बनाना सिखाया, जो बैलगाड़ी चलाते थे उनके लिए बैलगाड़ी और रथ तैयार कराया, जो मिट्टी के काम करते थे, और उनको संगठित करके, ये 1-2 राक्षस नहीं थे मारी और सुबाहु, वो जो आजकल स्पाई होते हैं, आतंकवादी, गुप्तचर, उसी टाइप के वो सब थे, और पूरे क्षेत्र पे कब्जा करना चाहते थे, जैसे कश्मीर में हो रहा था। तो संगठित करके सभी राक्षसों का संहार किया, महीनों वहाँ रहे, और फिर वो राज्य उनको देके चले गए, खुद राज्य नहीं लिया। अब आप देखेंगे कि जब रावण का पता लग गया कि रावण लेके गया है, तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे, किसी अन्य राजा से संपर्क कर सकते थे कि हमको सेना की आवश्यकता है रावण से लड़ना, बंदरों को इकट्ठा किया। ये प्रतीक है कि ईश्वरीय चेतना भगवान राम के रूप में या कृष्ण के रूप में
जागृत स्थूल रूप में भी आए तो कभी भी खुद काम नहीं करते, समाज को प्रेरणा देते हैं कि आप कर सकते हैं और आपके द्वारा कराएंगे। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान को, भक्त कहेंगे भगवान कृष्ण ने उठाया, और भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो समूह ने उठाया। सारे ग्वाल बाल लग के लाठी लगाए, और ईश्वरीय तत्व में देखेंगे तो उन्होंने उठा लिया था। तो ये भारत का नागरिक कोई भी हिंदू इस भरोसे नहीं बैठा रहा कि आएंगे भगवान और ठीक करेंगे। भगवान आए, उन्होंने सबको लिया, सब ठीक किए। और आज जो कल की अवतार की परिकल्पना है वो ये है कि घोड़े में आएंगे, हाथ में तलवार होगा, सफ़ेद घोड़ा होगा, सबको काटते हुए चले जाएंगे। संबल ग्राम में जन्म हुआ। तो इसे ध्यान से समझिए कि आज घोड़े का ज़माना है जी नहीं, कि घोड़े पे बैठ के आज आएंगे, तलवार से आज चले। आज तो मिसाइल चलती है, सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल होता है, और एक से एक रॉकेट और वायुयान हैं। तो आज का जो अवतार होगा विवेक के रूप में होगा, जागृति के रूप में होगा, प्रज्ञा के रूप में होगा, ज्ञान के रूप में होगा। और हम तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के पास नारायण का अवतार होता है, तो भगवान विष्णु के पास असुर पहुंचा और उसने कहा कि जब जब मैं रावण और कंस बन के आया, हमेशा अपने राम और कृष्ण बन के मेरा संहार कर। इसलिए रुक जाओ भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। राम और कृष्ण बन के आपने संहार कर दिया, इस बार मैं सूक्ष्म रूप में जाऊंगा, हर आदमी का दिमाग खराब कर दूंगा और सबके अंदर आसुरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। मैं सबके अंदर रहूंगा तो आप मेरा संहार कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा हमेशा हमने तुम्हें मात दिया है, हमारे ही बनाए हुए हैं। तो इस बार मैं भी ज्ञान के रूप में जाऊंगा और एक संत के अंदर से निकलूंगा विचारों के रूप में, प्रबल शक्तिशाली प्रभावशाली सदविचार के रूप में, और दूसरे में प्रवेश करूंगा, दूसरे व्यक्ति में, अंदर ही अंदर तुझे मार दूंगा और वो आदमी सात्विक हो जाएगा। तो मनुष्य में असुरत्व समाप्त होगा, तो मनुष्य में देवत्व जागेगा और धरती स्वर्गमयी हो जाएगी। तो आज अवतार ऐसे एक व्यक्ति नहीं आने वाले, बल्कि समूह के अंदर साधु संतों के माध्यम से, विचारकों के माध्यम से विचार और ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में ईश्वरीय तत्व विराजमान होगा। लोग विवेकशील होंगे, समझ बढ़ेगी, तो निश्चित ही नकारात्मक शक्तियाँ परास्त हो जाएंगी और ये राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व उन्नत होगा। स्वामी जी बस लास्ट, क्योंकि अब सूरज ढल रहे हैं और एकदम से अंधकार हो रहा है, बस इस आपका कहना ये है, क्योंकि हमारी आपकी बात हुई और आपने एक विशेष रूप से जो मुझे एनलाइटन किया, आपने ये कहा कि भारत ऑलरेडी जगत गुरु है, कोई जगत गुरु बनेगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भारत जगत गुरु है। जिस तरह सूरज को देखने के लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, आंखों की रोशनी से देखना पड़ेगा, उसी तरह से जिसको भी ये चीज़ समझना है वो अपने खुद एक देखे और देखने का प्रयास करे। इसमें लोग कहते हैं कि अब भारत जगत गुरु बन जाएगा। महाशक्ति बनना अलग बात है, सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया की बराबरी करना और उनके पीछे छोड़ देना ये भी अलग बात है। जिस गति में भारत चल रहा उसमें भी नंबर 1 होगा। आर्थिक शक्ति बनना ये भी अलग बात है। जगत गुरु बनना सर्वथा भिन्न है, क्योंकि जगत गुरु बना नहीं जाता। गुरु का मतलब ज्ञान, और ज्ञान जिसके पास है ही, अब कहेंगे कि अब ये गुरु बन गए। अरे भाई, वो तो परम ज्ञानी है ही पहले से। आपने आज उनको देखा है तो आपको लग रहा है कि ये गुरु बन गए। पूरे विश्व में मैक्स मुलर ने लिखा अपनी पुस्तक में, बर्टन रसल ने लिखा हिस्ट्री, इसमें अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, कि परमाणु युद्ध होगा, लोग मर जाएंगे और थोड़े से जो लोग बचेंगे, अथवा परमाणु युद्ध नहीं हुआ और लोग बच गए, तो उनकी संस्कृति होगी भारतीय संस्कृति। क्योंकि ये ज्ञान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैक्स मुलर कहता है कि हमें उपनिषदों से ज्ञान लेना होगा। उपनिषदों, आज पूरी दुनिया में बड़ी से बड़ी बात करिए तो वसुधैव कुटुंबकम तक भी पहुंचना किसी संप्रदाय या किसी राष्ट्र के विचारधारा में बहुत मुश्किल है। और वसुधैव कुटुंबकम को भारतीय संस्कृति बड़ी छोटी सी बात मानती है। ये वसुधा कुटुंब है, मतलब धरती,
एक परिवार है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन परिवार होगा तो लड़ाई होगी, परिवार होगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, और परिवार होगा तो बंटवारा होगा, और परिवार में भाई भाई के बीच गोलियां चलेंगी धन के लिए, बाप बेटे के बीच मुकदमे होंगे। तो भारतीय संस्कृति की विचारधारा न केवल वसुधैव कुटुंबकम बल्कि आत्मवत सर्वभूतेषु। उपनिषद कहते हैं एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। ये भाव भारतीय संस्कृति में ही है, तो जगत गुरु है। आप पश्चिम के लोग जान जाएंगे कि वो जगत गुरु है। अभी आप जान, सूरज तो निकला लेकिन आप अपने आंख बंद कर किए बैठे हैं। सूर्य उग कर भी भला क्या हित करेगा, आंख पर पट्टी अगर हम बांध बैठे। Thanks a lot, and my dear viewers, you have been listening to a man of wisdom, the man who epitomizes wisdom, and every single word that he spoke in course of an interaction with me definitely was a vindication of this very, very important introduction that I had given you in the beginning of this program. My dear viewers, great Adi Shankaracharya, the greatest mind ever born in the mortal body, had said, this world is a manifestation of Brahma. There is one consciousness which pervades the entire universe in every species. And revered Guruji, you know, that is His Holiness Mahamandaleshwar, doctor, because our revered Guruji, you know, he holds a doctorate of philosophy and science to his credit, has already botched this particular fact that, you know, the great, the soul, you know, resides or pervades every atom of the universe. And my dear viewers, before we part our ways, it has been a wonderful interaction, and I do express my deepest thanks, deepest sense of gratitude to my, you know, our revered Guruji for having given me an invaluable time. And as I told you in the beginning, as I made an announcement in the beginning, I am going to reiterate my announcement that I have started writing what would be one of the finest biographies ever written by the divine grace, by the grace of our, you know, His Holiness, our revered Swamiji. It will be a fantastic book. I wait for the book to hit the public domain. And I would like to say one thing before I just bid all of you a goodbye, that when I read an autobiography of Yogi in the year 2001, I had intentionally desired, it was my ardent wish that somewhere in the future I also will be able to write a book which would be somewhere which would resemble the treasure of knowledge as autobiography of Yogi is. And of course, in our revered Swamiji, in our revered Guru, I have discovered serendipitously, I stumbled upon such a yogi in today's time, you know, where great Shankara thousands of years ago had said, Udaranibitram Bahukrita Bhesam, Bhajagobindam, Bhajagobindam. In Kali Yuga, when all sort of, you know, people who would assume various facades, and, you know, all sort of deceit and treachery will be masqueraded through so-called ostensible truth. All that, it becomes very, very difficult to find a real yogi. And in this particular pursuit of mine, in the quest of mine, serious quest of mine, to unravel that sort of yogi who is a living testimony as well as an amalgam of Swami Vivekananda's wisdom and the great strong physique of that of Swami Dayanandji, I have stumbled upon a great yogi who is none but a brand ambassador of Oriental world to the entire global community. Thank you, sir. Thanks a lot for giving me a great opportunity, and we all seek your blessings. You know, for entire nation seeks your blessings from you, and I touch your feet in deep, you know, reverence. Thank you, my dear viewers. You have seen our Swamiji. Every word that he spoke was blessed with wisdom, and we need such, you know, our Swamiji, our revered Swamiji, for the liberation and for the salvation of the humanity today. And in this very concept of humanity, not only the citizens of India, but the citizens of the entire world is, you know, encompasses within the, you know, within that kaleidoscopic description of humanity. Thank you. Thanks to all of you.